About the reflection of light by spherical mirrors. So this is the reflection of light. This is about the reflection of light by spherical mirrors. Okay, is 9.2, reflection of light by spherical mirrors. Reflection of light by spherical mirrors. सो अप टू दिस पॉइंट ऑफ टाइम हम जो हमारा प्रीवियस नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग हमें कह सकते हैं कि हमें इस बात का थोड़ा जानकारी है कि हमने जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है वो ऑलरेडी पढ़ रखे हैं. सो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में यदि हम बात करें तो आपके पास यदि कोई एक ऐसा सरफेस है, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर यदि एक रे ऑफ लाइट ऐसे स्ट्राइक करते हैं जिसको हम बोलेंगे इंसिडेंट रे, और ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, और ये जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस यहाँ ये टकराती है, तो इससे यदि आप 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करें तो इसको आप बोलेंगे नॉर्मल टू द सरफेस, राइट. और ये इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से एक रे ऐसे चली जाएगी. दिस इज कॉल्ड द रिफ्लेक्टेड रे. So this is what the incident ray is. This ray is incident ray. This is incident ray, right? And this is normal to the point of incidence. इसको आपने बड़े ध्यान से सुनना और समझना है. It is a normal to the point of incidence. I will make it clear further. And this angle between the incident ray and the normal, this is called angle I. This is called angle of incidence, and this ray is called the reflected ray. This is called a reflected ray. Okay, and the angle between the reflected ray and the normal to the point of incidence is the angle of refraction. So what we have studied about the laws of reflection means laws of reflection are like this. According to the laws of reflection, so according to the laws of reflection, the first law is incident ray. This is the incident ray, the normal to the point of incidence, and the reflected ray all meet at the same plane. वो same plane और same point के ऊपर मिलते हैं. Okay, they all meet at the same plane. So this is the first law of reflection, and according to the second law of reflection is angle I, angle of incidence, is always equal to the angle of reflection. So the most important aspect of this law of reflection is this law of reflection is valid for any surface. The most important part is this is valid for any surface. This is valid for any surface. You don't think only that it is valid only the surface of this kind. A plane surface के लिए ही valid नहीं है. It is valid for any surface. So sometimes this the surface may be plane, and sometimes this surface may be the curved one. So you can take it like this. So sometime your surface is a plane surface, sometime your surface is a plane surface, and sometime your surface is a spherical surface. Okay, spherical surface. So this law of reflection, these laws of reflection are equally valid for the plane surface and the spherical surface, or I can say the most commonly I can use this word curved surface, right? This is equally valid for curved surface. Okay, now in case of curved surface what will happen, we'll reject the idea of plane surface. हम इसके बारे में अब हम डिस्कशन नहीं करेंगे. We will continue our discussion with the curved surface. So यदि आपके पास यदि कर्व सरफेस होता है तो उसमें आपने क्या करना है कि देखिए कर्व सरफेस ऐसा हो सकता है, कोई इसमें कर्व होगा इस तरीके का हो सकता है, आपका जो कर्व सरफेस है वो ऐसा हो सकता है, आपका कर्व सरफेस जो है वो इस तरीके का हो सकता है.
अब इसमें फॉर एग्जांपल कि जो रे ऑफ लाइट है वो इस पॉइंट के ऊपर पड़ रही है, यहाँ मैं इस पॉइंट को P ले लेता हूँ, और फॉर एग्जांपल या तो यहाँ पड़े इस पॉइंट को मैं Q ले लेता हूँ, मैं इस पॉइंट को कोई R ले लेता हूँ, और मैं इस पॉइंट को कोई S ले लेता हूँ, राइट। यदि आपकी रे ऑफ लाइट इस पॉइंट के ऊपर पड़ती है तो आप इसको क्या करेंगे, ये अपने पॉइंट सेलेक्ट कर लिया, और इस पॉइंट के ऊपर आप सबसे पहले क्या करेंगे, एक टेंजेंट खींचेंगे। यू विल जस्ट ड्रॉ ए टेंजेंट टू दिस सरफेस। यू विल जस्ट राइट टेंजेंट टू द सरफेस। और यदि इस पॉइंट के ऊपर आप लेंगे तो इस पॉइंट के ऊपर भी आप एक टेंजेंट टू द सरफेस खींच देंगे, ओके। इस पॉइंट को यदि आप पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है तो इसके ऊपर आप यहाँ टेंजेंट टू द सरफेस खींच देंगे। यहाँ यदि ये वाला पॉइंट आपके पास है तो इसके ऊपर आप टेंजेंट टू द सरफेस खींच देंगे, ओके। बट यू विल डू आफ्टर दैट, उसके बाद आप क्या करेंगे, नॉर्मल टू द इंसिडेंस, नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब आप यहाँ से एक 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। दैट इज़ द रीज़न भाई, यहाँ हमने कहा है कि नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इट्स नॉट ओनली द नॉर्मल टू द सरफेस। जिस एंगल के ऊपर आपके रे ऑफ लाइट टकरा रही है उसके ऊपर आपने 90 डिग्री का एंगल खींचना। तो दिस इज द नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हियर। So this is the normal to the point of incidence. This is take care of this while drawing the diagram or while solving the problems. So this is normal to the point of incidence. You have to understand that. So if you have the curved surface, so at any point of time, as you have seen in the plane surface, angle I is equal to angle R. But this is equally valid in this case also. ये इस surface के लिए भी equally valid है। यदि मान लो ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये इंसिडेंट रे हो गई, तो इसी एंगल के ऊपर नियरली अब ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। सो इस केस में भी एंगल आई और एंगल आर जो है वो बराबर होंगे। सो दिस इज इक्वली वैलिड फॉर द प्लेन सरफेस एज वेल एज फॉर द कर्व सरफेस, राइट। सो नेक्स्ट पार्ट ऑफ द डिस्कशन इज, यदि आपके पास कोई कर्व सरफेस है, इफ़ यू हैव एनी कर्व सरफेस लाइक दिस, okay, if you have a curved surface of this kind, I'll just take now this is the surface you have, और इसमें से आप जस्ट इतना पार्ट आप चूज कर लेते हैं। यू जस्ट सेलेक्ट दिस पार्ट ऑफ द surface, okay। so you can write this part as this part, this is spherical surface। आपने इतना पार्ट इसको काट दिया। So the geometry of this curved surface has a center over here, so this is called pole। इस पॉइंट को आप क्या बोलेंगे, this point is called pole, okay। और इस कर्व्ड सरफेस का, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं इस पार्ट को यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इस पार्ट को मैंने यहाँ रिप्रेजेंट किया, इसको तोड़ के बाहर निकाला है। इस पॉइंट को आप A और B मान लेते हैं। अब ये जो कर्व्ड सरफेस हमने चूज किया है, वी हैव चूजन दिस पार्ट ऑफ द कर्व्ड सरफेस, इस पार्ट को हमने चूज किया है। तो इस कर्व्ड सरफेस का जो सेंटर बनेगा, सो दिस इज नियरली एट दिस पॉइंट। तो सेंटर ऑफ द कर्व्ड सरफेस इज कॉल्ड द, इसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो दिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। दिस इज C, दिस पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ curvature। This point is called center of curvature। But sometime it is also possible that your curved surface may be like a lens। वो ऐसा भी हो सकता है। चलो इसके साथ हम कुछ और बात जुड़ी हुई हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल ये वाला पार्ट है, आप इस पोल को और आप सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिला दीजिए, तो ये बनेगी प्रिंसिपल एक्सिस। फॉर एग्जांपल कि मैं इसको ऐसे मिला देता हूँ और इसमें भी इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कुछ यहाँ बनता है। फॉर एग्जांपल दिस इज़ द सेंटर ऑफ कर्वेचर C। यदि आप पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिला देते हैं तो इसको आप बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस, ओके। बट समटाइम इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल कि आपका जो कर्व सरफेस है वो ऐसा भी हो सकता है ना। सी केयरफुली,
योर कर्व सर्फेस में भी लाइक दिस। ये थोड़ा बनाना मुझे मुश्किल होगा, तो खराब ही बन गया। तो समटाइम द कर्व सरफेस में भी लाइक दिस। सो यदि ये लेंस का केस है, दिस इज द केस ऑफ लेंस, आप ऐसी प्रॉब्लम्स भी आगे सॉल्व करेंगे, तो ये जानकारी आपको बड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। इस लेंस का जो इसकी जो ज्योमेट्री है, जो शक्ल आपको इसकी दिख रही है, इसका सेंटर कुछ यहाँ जैसे बनेगा, तो इसको फिर पोल नहीं हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। दिस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द टू। दिस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। यदि स्फेरिकल सरफेस का सेंटर हो तो उसको हम पोल बोलते हैं, इस पार्ट को हम बोलेंगे पोल। बट यदि ये लेंस हो, इसके मिड का जो पार्ट होगा उसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन टू। और ऑप्टिकल सेंटर से जो गुजरती हुई जो रे ऑफ लाइट है, बाकी तो हम इसके बारे में जो चर्चा बाद में करेंगे, जब इसकी बारी आएगी तो उसी टाइम इसके बारे में चर्चा करना अच्छा है। अभी तक हम इसको सिर्फ इतने तक ही छोड़ते हैं, राइट। So this is all about this, and then we will go for the sign convention. Okay, so further we will continue with the sign convention. This is article number 9 point this is article number 9.2.1. This is named as sign convention. This is sign convention. Okay, we will study about the sign convention, right? So by sign convention, to derive the relevant formula for reflection by the spherical mirrors. So this sign convention is for a reflection by spherical mirrors. स्फेरिकल मिरर जो हैं वो उसमें रिफ्लेक्शन कैसे होगा, रिफ्लेक्शन बाय द स्फेरिकल मिरर्स एंड फॉर रिफ्रैक्शन by the spherical lenses. So we'll have two cases, refraction by spherical lenses. Okay, so इसके लिए हम कुछ एक साइन कन्वेंशन इस्तेमाल करेंगे जो फिजिकल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जो है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से इसको डेवलप किया जाएगा। सो ये जो कुछ साइन कन्वेंशंस होगी वो कुछ इस तरीके की होंगी, पर उसके लिए हम एक स्ट्रक्चर आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, एक डायग्राम हम शेयर करना चाहते हैं। उस डायग्राम के हेल्प से आपको इन कन्वेंशंस को याद करना बड़ा आसान हो जाएगा। I'll try to put it at one end so that you can understand these so easily. This is the figure number 9.2. This is figure number 9.2 of NCERT. This is a Cartesian sign convention. So ये जो sign conventions होंगी इनका हम इस्तेमाल करेंगे आगे जो प्रॉब्लम सॉल्व करनी होगी उसके लिए। नंबर 1 हम पहले लिख देंगे, फिर उसके बाद आपको यहाँ से समझा देंगे। All the distances are measured from the pole. First is all the distances are measured from pole. कल हमने अभी इसी टेक्स्ट में हमने चर्चा की है कि पोल हम किस पार्ट को कहेंगे। सो दिस पार्ट इज अ पोल, द ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर हो चाहे स्फेरिकल लेंस हो। देखिए आप ये देखिए कि ये जैसे कर्व पार्ट है, ये कर्व पार्ट है, तो इसका जो ज्योमेट्रिकल सेंटर बनता है ये पोल होगा। और यदि आपके पास लेंस हो, राइट, उसका जो ज्योमेट्रिकल सेंटर यहाँ बनेगा उसको C से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम बोलेंगे ऑप्टिकल सेंटर। तो ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल
यदि आप स्फेरिकल मिरर की बात करते हैं, राइट, और फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, फ्रॉम द लेंस, और फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, or from the optical center of the lens। यदि प्रॉब्लम मिरर की होगी तो पोल से मापा जाएगा, और यदि प्रॉब्लम लेंस की होगी तो ऑप्टिकल सेंटर से मापा जाएगा। सो ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए। नंबर 2 पहले लिख देंगे, फिर उसके बाद हम समझाने की कोशिश करेंगे। डिस्टेंस मेजर्स इन द सेम डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट आर टेकन एज पॉजिटिव। द डिस्टेंस, जब हम इसको प्रैक्टिस में लाएंगे तब भी समझ आ जाएगा। द डिस्टेंस मेजर्ड in the direction of incident light are taken positive। are taken जो डिस्टेंस जो है वो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट में मापा जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल के, जैसे इंसिडेंट लाइट इधर से पड़ रही है, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है और लाइट इधर से मिरर के ऊपर पड़ रही है, तो डिस्टेंस यहाँ से मापा जाएगा। अब फॉर एग्जांपल कि हम यहाँ रखते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ है, अब लाइट इधर से इधर आ रही है, आप पोल से ही मापना शुरू करेंगे। उस टाइम आप यहाँ से नहीं इधर को मापेंगे। जब आप पोल से इधर को मापेंगे तो लाइट और जो आपकी डायरेक्शन ऑफ मेजरमेंट है वो अपोजिट है, तो ये नेगेटिव आएगा। बट यदि मान लो लाइट यहाँ से क्रॉस कर जाती है और आपने डिस्टेंस इधर को मापना है, यहाँ से पोल P से यदि आपने कोई A पॉइंट तक का डिस्टेंस मापना है, पोल से मापेंगे, इधर को मापेंगे, तो जो लाइट है वो भी लेफ़्ट टू राइट जा रही है, आप डिस्टेंस भी लेफ़्ट टू राइट मेजर कर रहे हैं, तो ये डिस्टेंस जो है वो पॉजिटिव आएगा, राइट। अच्छा, अगला तीसरा केस करते हैं। केस नंबर 3 इज नाउ द डिस्टेंस मेजर्स in the direction opposite to that of incident light, the distance measured in the direction opposite to incident light is taken as नेगेटिव। इसको भी आपने समझना है। आप देख लीजिए, दोनों को इकट्ठा भी समझ सकते हैं। हम इन दोनों को इकट्ठा फिर से समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, फॉर एग्जांपल कि ऑब्जेक्ट आपका यहाँ है और आप उसका डिस्टेंस मापना चाहते हैं। आपने इसको 10th में भी पढ़ा है। आप उसकी जो लोकेशन है उसको आप मापना चाहते हैं कितने दूर है, तो आप मापना यहाँ से शुरू करेंगे, पोल से आप मापना शुरू करेंगे, इधर से इधर को मापते आएंगे। पर आप ये देख रहे हैं कि जो लाइट है वो लेफ़्ट से राइट की ओर जा रही है, और आप जब यहाँ से इसको मापेंगे तो राइट से लेफ़्ट की ओर आप जा रहे हैं मापते मापते, तो ये जो डिस्टेंस है वो नेगेटिव आएगा। यदि आप यहाँ से इधर को, जो अब मान लो इमेज इधर बनता है, तो आप मापना शुरू करेंगे हमेशा पोल से इधर को मापेंगे। अब लाइट की डायरेक्शन जो है लेफ़्ट टू राइट, और आपके मापने की डायरेक्शन क्या है, लेफ़्ट टू राइट, तो इसका आंसर जो है वो पॉजिटिव आएगा। ओके, सो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। और 4th पॉइंट हमारे पास अब होगा, this 4th point is the height measures upward with respect to the axis। height measured upward to the axis
और आप इसको एक्स एक्सिस ले सकते हैं, upward to the axis, that is x axis of the mirror. कभी आपके पास प्रॉब्लम मिरर की होगी और कभी आपके पास प्रॉब्लम लेंस की होगी. सो जो द हाइट मेजर्ड अपवर्ड टू द एक्सिस, दैट इज एक्स एक्सिस ऑफ द मिरर और लेंस, इज टेकन एज पॉजिटिव. इसको आप पॉजिटिव लेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल अब यहाँ देखिए, आप एग्जांपल के साथ देख सकते हैं, अच्छा समझ आएगा. यदि मान लो हमारा ऑब्जेक्ट इतनी हाइट का है, हम उसकी हाइट निकालना चाहते हैं, तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ऊपर की ओर है, अप टू द, ये इस डायरेक्शन में है, इसको पॉजिटिव लिया जाएगा. यदि आपका इमेज इधर बनता है, उसकी हाइट कुछ ऐसी होती है, इसको भी पॉजिटिव लिया जाएगा. राइट, इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं. सो नेक्स्ट इज fifth one is the height measured downwards are taken as negative. The height measured downward the heights measured downward are taken as negative. यदि हाइट जो है वो डाउनवर्ड आप मेजर करते हैं तो उनको नेगेटिव कंसिडर किया जाएगा. सो दिस आर ऑल द साइन कन्वेंशंस एंड वेरी यूजफुल फॉर अस टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स. अब हमारे पास जो आगे हम टेक्स्ट करेंगे उसके लिए ये वाला पार्ट जो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा. एक बार फिर से हम आपके साथ दोहराना चाहते हैं कि आप ध्यान से देखेंगे कि जो फर्स्ट वन है, सारे जितने डिस्टेंस हैं वो हमेशा पोल से मापे जाएंगे यदि स्फेरिकल मिरर होगा. स्फेरिकल मिरर के केस में पोल से मापे जाएंगे, और यदि आपके पास लेंस की प्रॉब्लम होगी तो ऑप्टिकल सेंटर से मापे जाएंगे. राइट. दूसरा, जो डिस्टेंस है, जो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन में मापे जाएंगे, फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट मापे जाएंगे, वो सारे पॉजिटिव होंगे. और जो लाइट जैसे लेफ़्ट टू राइट आएगी, आप यदि डिस्टेंस मेजर करेंगे पोल से, जो राइट टू लेफ़्ट मापा जाएगा उसको हम नेगेटिव लेंगे. और उसके बाद है जो एक्स एक्सिस के ऊपर, जैसे फॉर एग्जांपल आप डायग्राम में देख रहे हो, इसमें आपने मिरर को रखा हुआ, कभी आप लेंस को ऐसे रख सकते हो. ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है कि यदि आप लेंस भी ऐसा ले लें, यदि आप लेंस का केस लेंगे, और जब प्रॉब्लम होगी उस टाइम हम बात कर लेंगे. अप टू द प्रिंसिपल एक्सिस जो है वो हाइट पॉजिटिव आएगी, और डाउन टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये हम एक डायग्राम इधर बना देते हैं. यहाँ आप देखें, यदि मान लो हाइट को आपने ऐसे मापना होगा, इधर को यदि आप मापेंगे ऐसे, तो ये भी नेगेटिव आएगी क्योंकि एक्स एक्सिस से नीचे की ओर है. और यदि मान लो फॉर एग्जांपल आपका इमेज जो है वो कुछ इस तरीके से बनता है, राइट, तो ये भी नेगेटिव आएगा. सो इन द हाइट मेजर्ड डाउनवर्ड आज टेकन एज नेगेटिव. ओके, now I will discuss about the focal length of spherical mirrors.